Hello everyone, welcome to my YouTube channel Easy Maths by Vishali, and in this video we will see exercise 10.3 class 7. Question number 1. Construct triangle DEF such that DE is equal to 5 cm, DF is equal to 3 cm and measure of angle EDF is equal to 90, means angle D given 90 degree. So we have to construct. Let's start. First of all, draw a line segment. हमने एक line draw किया, DF या DE, any you can choose. So DE we will construct. हमने DE line बनाया 5 cm. So put the point on 0 and the another point we have to put on 5. It means this line segment will be 5 cm और 5 cm given है DE. Yes, we have DE line segment 5 cm. Now we have to construct D angle 90 degree. So on point D we have to construct the 90 degree. So in the first video of practical geometry I have explained how can we make a 90 degree. So first of all, any convenient radius, compass radius कुछ भी ले सकते हैं. So any convenient radius you have to draw an arc. So here we have to draw an arc with D as a center. So हमने D पर compass put up किया and एक arc cut किया. Okay, first arc we will cut for the 60 degree. फिर 60 degree पर हम cut करते हैं तो ये 120 का होता है. एक 60 डिग्री पे पुट अप करके हम एक आर्क अप साइड कट करेंगे, फिर 120 पे पुट अप करेंगे, देन अनदर आर्क विच इंटरसेक्ट द प्रीवियस आर्क. ये जो आर्क का इंटरसेक्शन पॉइंट मिला है हमको आर्क को कट करने पे, जब इस इंटरसेक्शन पॉइंट को जब हम डी को ज्वाइन करेंगे वी विल गेट 90 डिग्री. तो ये हमें मिलेगा 90 डिग्री. ओके, वी कैन एक्सटेंड दिस लाइन. हमने ये लाइन को एक्सटेंड किया और हम प्रोटेक्टर से चेक भी कर सकते हैं. हमने बनाया है, वी हैव कंस्ट्रक्टेड बाय द कंपस बट वी कैन चेक बाय प्रोटेक्टर. यस, दिस इज़ अ 90 डिग्री. हमें ये 90 डिग्री मिल गया है. ओके, सो 90 डिग्री हमें मिल गया है. नाउ वी हैव टू मार्क DF लाइन सेगमेंट. हमें DF मार्क करना है. इट विल बी 3 सेंटीमीटर. सो अब हम सेट करेंगे कंपस रेडियस ऑफ लेंथ 3 सेंटीमीटर. सो इट्स अ 3 centimeter. Now we don't have F point. So yes, we have a D point. With the D as a center we can cut an arc of radius 3 centimeter. अब जो ये arc कट हुआ है इस लाइन पे वो F point होगा. Now join DF तो ऑलरेडी ज्वाइन किया हुआ है. Now we have to join F and E. So F और E को जब हम ज्वाइन करेंगे we will get the required triangle DEF. हमने ज्वाइन किया डी. दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल बिकॉज वी हैव दिस इज द 90 डिग्री. ये हमें क्या मिल गया है 90 डिग्री. इट विल बी 3 सेंटीमीटर. और इफ़ वी हैव टू फाइंड, अगर हमें फाइंड आउट करने को आता है कि EF का लेंथ क्या है, सो यू कैन ऑल्सो फाइंड बट नो नीड टू फाइंड हियर, नॉट रिक्वायर्ड इन दिस क्वेश्चन. सो यस, यू कैन राइट हियर दस ट्रायंगल DEF इज रिक्वायर्ड ट्रायंगल. Okay, we have written this. Thus, DEF is the triangle. DEF is a required triangle. And please see carefully that this is the arc for F and this is arc for the 90 degree. Okay, so you have to choose correctly. Now, see the question number 2. Question number 2, construct an isosceles triangle in which the length of each of its sides is 6.5 centimeter and the angle between them is 110 degree. गिवन है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, हम आइसोसेलेस ट्रायंगल बना रहे हैं. इट मीन्स 2 साइड्स इक्वल इन लेंथ. जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती है वो होता है टाइप ऑफ ट्रायंगल. क्या होता है? आइसोसेलेस ट्रायंगल. यस, एंड ऑल्सो वी हैव अ 1 एंगल. सो आई टोल्ड इन द प्रीवियस वीडियो कि जब भी आपके पास 3 साइड्स होती है, यस वी कैन मेक अ ट्रायंगल. इफ़ वी हैव अ 2 साइड्स, अगर हमारे पास 2 साइड्स है तो हम ट्रायंगल क्रिएट नहीं कर सकते. वी कांट कंस्ट्रक्ट एन
construct a triangle, but if we have a 2 sides and 1 angle, so we can make a triangle. So हम start करते हैं. First of all we have to draw a line segment of length 6.5 centimeter. So here we have to construct. अब हमें construct करना है the length of side 6.5. तो मैंने यहाँ पर construct किया. Here first point मैं बनाऊँगी, मार्क करूँगी 0 पे, and then another point I will mark on 6.5. Then join both the points. This is the line segment for 6.5. I can give the name, ये P हो जाता है, and then Q, any name you can give according to you. A, B, C, X, Y, Z, we have given PQ. Now this is the 6.5 and we have to construct, and जो अब यहाँ पर जो हम साइड बनाएंगे वो होगा 6.5, बट उनके बीच का ट्रायंगल 110 है. तो अब मैं आपको ड्रॉ करना बता रही हूँ, हाउ कैन वी मेक अ ट्रायंगल 110 डिग्री. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ़ वी हैव टू मेक 110 डिग्री ऑन P, अगर हम P पे बनाते हैं, हम यहाँ पर गिवन नहीं है बट 2 साइड्स बनाएंगे, Q पे बना सकते हैं, P पे बना सकते हैं, तो हम P पे बना लेते हैं. चलिए अब हमें P पे ड्रॉ करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कट एन आर्क. हम जैसे 90 डिग्री बनाते हैं वैसे आपको एज इट इज़ 90 डिग्री तो बनाना है. देन आफ्टर आई विल टेल यू कि कैसे आप 110 बनाते हैं. आप फिर 90 डिग्री के लिए जो कंस्ट्रक्शन आपने किया, इसमें आप जहाँ आर्क लाइन सेगमेंट को कट कर रहा है वहाँ कट करेंगे. इट्स फॉर 60 से आप कंस्ट्रक्ट करेंगे अप साइड, और ये 120 के लिए. फिर 120 पे आपने जब पुट अप किया तो आप जो प्रीवियस आर्क है, जो अप साइड जो बनाया है टॉप पर, उसको इंटरसेक्ट किया, ये 90 डिग्री हुआ. सेम इस 90 डिग्री का जो इंटरसेक्शन पॉइंट आपके पास आता है, आप उसको इस इंटरसेक्शन पॉइंट पे पुट अप करते हैं और एक आर्क कट करेंगे सेम रेडियस का. तो आपको क्या मिलेगा 110 डिग्री के लिए. बट अब एक आपके पास आर्क से आपको पूरा वैल्यूज़ या पूरी 110 डिग्री का मेज़र नहीं मिलता है. तो आप पहले तो P और इस इंटरसेक्शन पॉइंट को जब ज्वाइन करेंगे तो आपके पास क्या आ जाता है, यहाँ पर इस आर्क को आप ज्वाइन करेंगे और आपके पास आ जाता है 90 डिग्री एंगल. ठीक है, तो फिर आप क्या करेंगे, आप इस आर्क से 90 डिग्री का मेज़र लेके 120 पर आप पुट अप करेंगे. देन यू विल गेट द 110 डिग्री. बट हियर वी हैव द आर्क इज़ लेस ना, तो हम एक बार आर्क फिर थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देते हैं और यहाँ से हम इसको इंक्रीज़ करके इसे बढ़ा दिया हमने, तो हमें एक आर्क मिल गया. यस, आर्क जो प्रीवियस आर्क को इंटरसेक्ट कर रहा है इस पॉइंट पे, तो ये जो हमें पॉइंट मिलेगा अब, ये हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट जब हम P से ज्वाइन करेंगे तो यस दिस P जो होगा वो हमारे पास 110 डिग्री मिलेगा. एंगल P को हम मेज़र कर सकते हैं कि हमारा कंस्ट्रक्शन करेक्ट है नहीं बाय यूजिंग द प्रोटेक्टर. तो हम बाय यूजिंग प्रोटेक्टर हम जब ज्वाइन कर रहे हैं तो हमने ये देखा कि यस P पे एग्जैक्टली पुट अप करेंगे. यस, ये जो P एंगल हमारे पास आ रहा है मीन्स PQ, और जो भी यहाँ पर यस R लेंगे तो ये PQR जो हमारे पास ट्रायंगल होगा उसमें 110 डिग्री होगा एक, तो ये ऑब्ट्यूज एंगल होगा हमारे पास एंगल ट्रायंगल. तो अभी तो हमने 110 बना दिया, हम इसको मार्क कर लेते हैं कि ये जो हमारे पास पूरा एंगल है वो 110 डिग्री है. ना अब नेक्स्ट हमारे पास है आइसोसेलेस ट्रायंगल. तो आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए जो कंडीशन है वो हम फुलफिल करेंगे कि अगर एक साइड 6.5 सेंटीमीटर है तो अनदर साइड ऑल्सो विल बी 6.5 सेंटीमीटर. सो विद दिस बाय सेम रेडियस, ये हम सेम रेडियस ले लेते हैं और हम एक आर्क कट करेंगे 6.5 सेंटीमीटर का. सो वी हैव टू पुट द कंपास पॉइंटर ऑन P. तो पहले हम इस लाइन को और थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं, जो हमने ये एंगल का लाइन बनाया है एक्सटेंड किया. नाउ पुट द कंपास पॉइंटर ऑन P एंड कट एन आर्क. ये भी और थोड़ा सा बड़ा हो गया जो हमारे क्वेश्चन पे आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इसको सिर्फ थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं एंगल वाली लाइन को, और ये हमारा एक पॉइंट मिला जो कि R होगा. सो PQR विल बी द रिक्वायर्ड ट्रायंगल, और हमने Q और R को ज्वाइन कर देना एट लास्ट. सो ये जो अब हमें जो ट्रायंगल मिला है दिस इज़ द रिक्वायर्ड triangle. Thus we can write thus triangle PQR
is the required triangle. Okay, I hope it's clear to you. I repeat the construction of the 110 डिग्री साइड में मैं कंस्ट्रक्शन करती हूँ. अगर मैंने इसको सपोज पी क्यू आ रहा है तो ये मैं अगर ए और बी ले लेती हूँ तो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी हाउ कैन वी कंस्ट्रक्ट. जब आप 110 डिग्री बनाते हैं तो आपको एज इट इज़ 90 डिग्री तक का कंस्ट्रक्शन करना है. फिर आपको क्या करना है, जो 90 डिग्री कंस्ट्रक्शन किया आपने, तो ये जो यहाँ पर आपको इंटरसेक्शन पॉइंट मिला है उससे एक आप आर्क कट करेंगे. फिर आप रेडियस ले लेंगे ए और बी का. फिर आप डिस्टर्ब करेंगे रेडियस को कंपास की, और फिर ए और बी का जितना आपका रेडियस है उतना आप ये रेडियस लेकर ए बी है ना, ए बी का रेडियस लेके जब आप 120 पर रखेंगे, 120 का जो मार्क है उस पर रखेंगे, और फिर आप जो एक और अनादर आर्क कट करेंगे विच इज़ इंटरसेक्ट द प्रीवियस आर्क. तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट जो मिलेगा आपको, ये 110 डिग्री की एंगल को शो करेगा. फिर आप उसके बेस वर्टेक्स से ज्वाइन कर देंगे तो आपको 110 डिग्री मिल जाएगा. यू कैन सी 110 डिग्री फ्रॉम द स्टार्टिंग जब हमने ये ये ट्रायंगल बनाया था. ओके, इन क्वेश्चन नंबर 3 we have to construct triangle ABC with BC is equal to 7.5 centimeter, measure of angle C is equal to 60 centimeter and AC is equal to 5 centimeter. So now फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कंस्ट्रक्ट लाइन सेगमेंट. हमें कंस्ट्रक्ट या ड्रॉ करना है, तो पहले हमने ड्रॉ किया लाइन सेगमेंट. कोई भी लाइन सेगमेंट ले लो, या तो BC या AC. तो हमने लाइन सेगमेंट BC लिया है 7.5 सेंटीमीटर. वी हैव टू टेक लाइन सेगमेंट BC हमने लिया 7.5. पहले 0 पे मार्क करेंगे, फिर 7.5 पे, और दोनों को ज्वाइन कर लेंगे. इट्स अ BC पॉइंट 7.5 centimeter length of BC. Now, then after we have to mark angle C. तो हमें C पर एंगल बनाना है which is angle C 60 डिग्री. तो अब draw an arc of any convenient radius at point C. हमको 60 डिग्री का कंस्ट्रक्शन आता है. बट रिमेंबर दिस थिंग, एक आपको बात ध्यान रखनी होगी. अगर आप यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, आप C पे एंगल बना रहे हैं, अगर आप ऑब्ट्यूज बना रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या होगा, ग्रेटर देन 90 डिग्री. बट आप क्या बना रहे हैं, एक्यूट बना रहे हैं, तो आप यहाँ नहीं रखेंगे क्योंकि आपको सी पे बनाना है. तो सी का जब आप बना रहे हैं तो आप 0 यहाँ से स्टार्ट करेंगे, और सपोज अगर आप बी पे बना रहे होते तो 0 यहाँ से स्टार्ट करते. सो रिमेंबर दिस थिंग, आप 0 डिग्री अगर यहाँ है तो आपका 60 डिग्री आप 0 पे पुटअप कर रहे हैं सपोज, ठीक है, तो आपका 60 डिग्री यहाँ होगा, और इसके बाद 120, जो 120 होगा वो ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है. बट 120 नॉट रिक्वायर, ओनली 160. तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट अब हमें मिलेगा वो हमारा क्या होगा, 60 डिग्री. तो हम ये O से ज्वाइन नहीं करेंगे. प्लीज़ रिमेंबर दिस थिंग, यू विल नॉट ज्वाइन द इंटरसेक्शन पॉइंट विथ O, है ना. ये O तो हमने ऐसे ही आपको एक्सप्लेन करने के लिए दिया है, जैसे O या ये 0 डिग्री जिसको हमने कहा था. तो यहाँ से स्टार्टिंग है, मीन्स स्टार्टिंग तो ये 60 डिग्री होगा. नाउ वी हैव टू ज्वाइन दिस इंटरसेक्शन पॉइंट एंड C. तो हमने ऐसे लाइन ड्रॉ किया इंटरसेक्शन पॉइंट और C को लेके. ओके, दिस इज़ द 60 डिग्री. तो ये हमारे पास एंगल आ गया 60 डिग्री. नाउ वी हैव टू टेक अ लाइन AC. ओके, AC 5 सेंटीमीटर है. इट मीन्स कि वी डोंट हैव अ पॉइंट A बट वी हैव अ C. सो टेक अ कंपोस्ट रेडियस ऑफ 5 सेंटीमीटर एंड विथ C एज अ सेंटर. अब हमें विथ C एज अ सेंटर लेना है एंड कट एन आर्क ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर विच इज़ इंटरसेक्ट दिस एंगल लाइन, जो एंगल लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है 8 पॉइंट A. ये पॉइंट हो जाएगा आपके पास A. यू कैन गिव द नेम A एंड देन ज्वाइन पॉइंट A एंड B. ऑब्वियस है कि A और C तो ऑलरेडी ज्वाइन है, उस पे मार्क किया था हमने, बट A और B को ज्वाइन करेंगे, देन वी विल गेट द रिक्वायर्ड. आप एग्जैक्टली जो ज्वाइन करना. ओके, सो यू विल गेट द रिक्वायर्ड triangle ABC. Thus we can say, and we can write the length also.
दिस इज़ अ AC 5 सेंटीमीटर, BC गिवन 7.5 एंड AB अगर हमको मार्क करने को आता है एंड इट्स रिक्वायर इन द क्वेश्चन व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ AB, सो वी कैन फाइंड बट नॉट रिक्वायर, सो इट्स ओके। और अगर चाहें तो आप इसको बाय यूजिंग द स्केल आप ये फाइंड आउट भी कर सकते हैं। दिस इज़ द लेंथ 6.5 और 6.6, सी एग्जैक्टली इट्स अ 6.6 अप्रोक्स, ठीक है। So not required to find, but we can find by using ruler. So thus we can say, thus triangle ABC is required triangle. I hope it's clear. This exercise 10.3 completed. Thanks for watching, children.